Hello everyone, today we are taking numerical especially based on the multiplication, division and raising to the some power. जो पावर के ऊपर दिए होते हैं उनके न्यूमेरिकल कैसे करने चाहिए, आज हम थोड़ा सा इनको देखेंगे. First numerical is in this way: the length and the breadth of a rectangle are 5.7.1 centimeter and 3.4 प्लस माइनस के साथ 0.2 सेंटीमीटर. यहाँ दोनों जगह प्लस माइनस है. यू विल कैलकुलेट हियर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स. ओके, लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन. सो नाउ एरिया वी नो फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. तो L into B, we will take this 5.7 and 3.4. Then we will multiply, we will get 19.38. अब यहाँ पे देखिए हमारी सिग्निफिकेंट कितनी है, 2. यहाँ पे कितनी है, 2. तो यहाँ पे भी हमारी सिग्निफिकेंट कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे है 4, बट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए. तो 19.0 लिखना या 19 लिखना भी ठीक रहेगा. ओके, देन राउंड ऑफ हमने कर दिया है. अब नाउ अब हमें जैसे यहाँ लिखा है L प्लस डेल्टा L, यहाँ B प्लस डेल्टा B, ऐसे ही हमको लिखना पड़ेगा A प्लस डेल्टा A, बट वी डोंट नो डेल्टा A. नाउ वी नो ओनली A. So how will we get delta A? So formula of relative error, fractional error, delta A upon A is equal to plus minus. यहाँ देखिए हमेशा प्लस माइनस ज़रूर रहता है. Delta L upon L plus delta B upon B. That we can write plus minus. Then delta L is what? This, and delta B is this. Okay. So 0.1 upon 5.7 plus 0.2 upon 3.4. Now we will calculate, but we will not neglect this plus minus. So we will take LCM and then multiply, then we are getting answer plus minus 1.48 upon 19.38. ये हमारा डेल्टा A अपॉन A निकल के आया. अब दिस A we will bring this side, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ रहेगा डेल्टा A. एंड ये भी देखिए मज़े की बात, A जो है हमारा 19.38 आ रहा है, जो यहाँ पे नीचे आ रहा है. अब यहाँ पे हम राउंड ऑफ वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन लेंगे. तो इट विल बी कैंसिल आउट हियर एंड हियर. सो रिमेनिंग इज आवर ओनली 1.48 विथ प्लस माइनस साइन. तो अगेन वी कैन reduce that, then we will get how much is there, that is the our plus minus 1.5. okay, so here our area is coming, what this is coming, our area is 19.0 plus minus 1.5. this is the area के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, दैट इज द रिलेटेड टू कैपेसिटर. कैपेसिटर इज व्हाट आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो. द एनर्जी और चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर, whose value is given C is equal to 2 plus minus 0.1 microfarad. okay, is charged to a potential difference V is also given. So use this formula, Q is equal to CV. Q is equal to CV. C is given, V is given. Then you can calculate Q. Q की वैल्यू किस में लानी होगी, Q plus delta Q. So I hope you understood question related to this addition. Now question related to this division part. Earlier we have taken multiplication. A body travels uniform a distance of 13.8 plus minus 8.2 in a time 4.0 plus 0.3 second. You will calculate here velocity with error limits, and you will calculate percentage error in velocity also. So then again distance is given, this and time. So then velocity is equal to distance upon time. So this is the 13.8 upon 4. So V is coming our 3.45 meter per second, or we can say 3.5 meter per second. okay, then 3.5 meter per second. Then delta V upon V, we will take delta S upon S plus delta T upon T. Then we will substitute here value. Then we are getting, when we are calculating, so we are getting plus minus 0.0895. So delta V is how much? This V will bring this side, so it will come plus minus 0.0895
into 3.45. Okay, then we will multiply, then we are getting this, और इसको हमने जो राउंड ऑफ करके लिखा 0.31, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. ओके, देन आफ्टर दिस delta v now we know, then we can write v plus delta v. तो 3.5 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकेंड. अब परसेंटेज निकालने के लिए जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी डेल्टा v अपॉन v, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 8.95% इज इक्वल टू प्लस माइनस 9%. So I hope you understood this question. I am taking one more question, but you will solve here. Question is this: a potential difference of V is equal to 20 plus minus 1 volt is applied across a resistance 8 plus minus 2 ohm. V दिया है, R दिया है. You will calculate current with error limits. आपको परसेंटेज एरर नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको जो है करंट की वैल्यू निकालनी है विद एरर लिमिट्स. आई होप सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज गिवन दैट यू कैन मैच. थैंक यू. अनदर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू नाउ पावर से रिलेटेड जो होते हैं उनको कैसे करते हैं. यहाँ पे एक वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी है, दैट वाज गिवन a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी, और इनकी सबकी इंडिविजुअल परसेंटेज एरर ए की, बी की, सी की, डी की दी हुई है. आपको परसेंटेज एरर एक्स की निकालनी. जितना लंबा ये न्यूमेरिकल होता है उतना इजी होता है, उतना इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा छोटा होता है. फर्स्ट यू राइट एक्स की क्या वैल्यू दी है, फिर आप इसको जब रिलेटिव एरर्स में लिखोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस का साइन लगाओगे. जो पावर दी है वो इस तरह आ जाएगी लेफ़्ट साइड में, जैसे लॉग में करते हैं. अब जैसे ए की लिखनी है तो डेल्टा ए अपॉन ए. यहाँ पावर 3 दी है तो मल्टीप्लिकेशन में सब ऐड होता जाएगा, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी. अब सी की पावर हम देखें तो नीचे दिया है, अपॉन दिया, सी की पावर 1 दिया, अपॉन दिया, लेकिन यहाँ पे उसका भी आप प्लस में ही लोगे, डेल्टा सी अपॉन सी. और डी की पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी. अब सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे और सारी वैल्यूज़ को निकाल के जब रख देंगे तो सॉल्व करेंगे. दैट इज़ कमिंग प्लस माइनस 12%. सो इट इज़ द आंसर ऑफ सच टाइप न्यूमेरिकल. वन मोर न्यूमेरिकल आई एम टेकिंग रिलेटेड टू दिस पोर्शन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जिसका टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी सब जानते हैं. इसमें लेंथ मेज़र की गई 20 सेंटीमीटर. ओके, नोन एज ए 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी. ये एल है, ये डेल्टा एल है, पर ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में. आप दोनों को एक में चेंज करोगे, एक में रखोगे, सेंटीमीटर में इसको करोगे. एंड टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की कि 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज़ गिवन, ओके, इज़ गिवन फाउंड टू बी 90 सेकेंड. अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है, 100 ऑसिलेशन का हमको टाइम दिया है 90 सेकेंड, टाइम पीरियड नहीं दिया है. ओके, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिसोल्यूशन, यानी डेल्टा टी हमको कितना दिया, 1 सेकेंड दिया. व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी. अब जी की निकालने की क्या एक्यूरेसी होगी ये आपको बताना है. अब फर्स्ट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. अब g को हम सब्जेक्ट फार्मूला बनाने के लिए पहले हम स्क्वायर करेंगे. t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, और g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. अब इसको फ्रैक्शनल फार्मूला में लिखेंगे तो डेल्टा g अपॉन जी, अपॉन वाली चीज़ होगी तो भी प्लस में आएगी, पर जो फार्मूले में पावर दी होगी वो मल्टीपल हो जाएगा. तो प्लस माइनस ऊपर देखिए, और कांस्टेंट टर्म का कुछ होगा नहीं, यानी 4 पाई स्क्वायर का कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं आएगा. डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, ओके, इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये जो हम ले रहे हैं ये टाइम पीरियड ले रहे हैं, और टाइम पीरियड हमें मज़े की बात है यहाँ दिया नहीं है, हमको टाइम दिया है 100 ऑसिलेशन का. अब इस चीज़ को कैसे हम ज़रा कन्वर्ट करेंगे अभी आपको बताते हैं.
तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया, प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। अब ज़रा ये देखो, डेल्टा टी अपॉन टी ये स्मॉल लेटर में लिखा है जबकि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था। अब इसको ऐसे समझेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज़ द स्मॉल टी अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी है तो आपका, अब अगर हम डेल्टा टी लेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती। आप याद करो, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था हमने कि रे जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो करेक्टरिस्टिक्स है, फंडामेंटल है, वो नहीं चेंज होगी। टाइम पीरियड किस में चेंज हो जाएगा, जो उसमें मेज़र कर रहे हैं टाइम वो चेंज हो जाए, पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल डेल्टा टी अपॉन एन। अब इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ एन फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं रह जाएगा, यानी इन प्लेस ऑफ कैपिटल डेल्टा टी अपॉन टी यू कैन राइट डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा टी और टी। अब यहाँ पे इसकी जगह हमने ये रखा, क्योंकि हमें ये सारी कारगुजारी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमको यहाँ टाइम पीरियड नहीं दिया था। तो डेल्टा जी अपॉन जी प्लस माइनस, अब एल की वैल्यू रख देंगे, +2 ये वाला रखा, लेकिन अब ये यहाँ पे क्या होगी, इसकी एक्यूरेसी 1 दी थी सेकंड, लेकिन ऑसिलेशन कितने दिए थे, 90 सेकंड दिए थे 100 के। तो यहाँ पे इसको लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आया, ओके, प्लस माइनस 0.027, और 100 से जब मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज़ कमिंग 2.7% और 3%। तो इट इज़ द आंसर। Try to understand this question, read more and more. This such type questions are important for your competitive exam. Thank you.